Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is again the marketing mix promotion. After studying the chapter number 12, 13, product and price, the chapter named as the marketing mix promotion. It is the part of the marketing mix. It is the third element of the marketing mix. 4 elements of the marketing mix you already know, which are product, price, promotion, and the place. So the promotion is the current topic. What is meant by promotion? The main purpose of promotion is to raise the awareness. And we divided the promotion activity of the marketing department into 2 types, above the line promotion and the below the line promotion. Whereas the above the line promotion consists of all forms of advertisement, advertising the products through TV, radio, billboards, brochures, leaflets, newspapers, social media. All these methods are used as a media to advertise the goods and services. And the process is called the above the line, where the promotion budget has been spent to inform customers, to provide information to the customer, to persuade the customer, to raise the awareness. And the topic below the line, the second category. The below the line is also a form of promotion, but the purpose and the way of working is something else, is so different from the above the line promotion. वहाँ पे promotion का जो budget वो just advertisement focus था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ slightly सा difference मिलेगा. इसमें below the line promotion is not the form of advertisement, but it is actually a short-term benefit provided by the business to the customers. Short-term incentive. Short-term का word इसलिए use किया गया है कि जो sales offers होती हैं ये एक particular time period के लिए होती हैं. Normally 1 day sale या 3 days, 1 week, 15 दिन या 30 days के point of view से इसको design किया जाता है, या 2 months या 3 months. कोई भी ऐसी sales promotion नहीं होती जिसको साल हर साल 4 साल से ये सेल्स प्रमोशन जो है वो ऑफर की गई. और अगर आप एक सेम प्रमोशंस ऑफर करते हैं, जैसे कि हैप्पी मील एक कंसिस्टेंट और स्टेबल प्रमोशन काफ़ी सालों से मैकडोनल्ड ऑफर कर रहा है, तो उसमें भी याद रखिएगा कि जो टॉय है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं वो, ताकि अगर वो सेम फॉर्म ऑफ प्रमोशन आपने उसको प्लेस भी किया है, वो सेम फॉर्म ऑफ प्रमोशन जो है वो भी कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली आपको चेंज होती नजर आएगी. तो अगर सेम फॉर्म ऑफ प्रमोशन भी है तो उसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा. अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव के तौर पे स्टडी किया जाता है, और ऑब्वियसली सेल्स प्रमोशन को एडवर्टाइज करना पड़ेगा. इट मीन्स के बिलो द लाइन अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो बिलो द लाइन मस्ट हैव अ सपोर्ट ऑफ अबव द लाइन. इसको आपको एडवर्टाइज जरूर करना पड़ेगा, बिलबोर्ड पे जरूर लगाना पड़ेगा कि जी एक शेयर बॉक्स आ गया और ये एक फैमिली बॉक्स है जिसको एक लो प्राइस पे बाय किया जा सकता है. सो बिलो द लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स प्रमोशन या बिलो द लाइन प्रमोशन, एक ही चीज के दो नाम. और इसमें जिस तरीके से अबव द लाइन को डिफाइन किया गया प्रमोशन बजट के, प्रमोशन एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन एक्सपेंडिचर इज पेड फॉर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, communicating with the customer. While in the below the line promotion, the promotion budget is paid for providing a short term incentive. तो ये डिफरेंस बेसिकली आज आपने जाना है. अबव में कम्युनिकेशन और बिलो में इंसेंटिव, ये दो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो से प्रमोशन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया. और जो प्रमोशन बजट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मिलता है, promotional expenditure budget which is allocated for marketing department at the start of the year. ये आपके मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग प्लान कितनी देर का है, 1 साल का है. तो 1 साल के लिए जो बजट मिलेगा, इस प्रमोशन बजट के 2 हिस्से, 2 कैटेगरीज की जाएंगी. The one part is allocated for above the line and the second would be allocated for below the line. तो इसको incentives कहा गया और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट
की सपोर्ट ज़रूरी समझी गई है। रीज़न इसकी बताई गई है कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल है। जैसे अगर आपके पास ऑफ सीज़न स्टॉक है, पाइल अप टाइड अप स्टॉक है, इस टाइड अप स्टॉक को कि सीज़न ऑफ हो चुका है इसको सेल आउट करने के लिए सेल्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। 50% 40% ऑफ दिया जा सकता है, बाय वन गेट वन, या कोई ब्लेस्ड फ्राइडे के नाम से इस तरीके से कोई सेल्स ऑफर की जा सकती हैं। 30% ऑफ अप टू ऑल आइटम, फ्लैट सेल्स, ये कॉमन से जो वर्ड्स हैं जो कि आज कल आप मार्केट में स्टडी करते हैं। जैसे ही सीजन ऑफ होता है शॉप्स के बाहर आपको इस तरह के जो प्रमोशन वर्ड्स हैं वो आपको नजर आते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म टू गिव अ बूस्ट टू सेल्स। इसमें अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। हाउ वी कैन ऑफर द इंसेंटिव्स, व्हाट फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, व्हाट फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स, कैसे और उनको कैसे अरेंज किया जा सकता है। डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने रखी जाएंगी और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट या अफोर्डेबिलिटी और नेचर ऑफ योर इंडस्ट्री, टाइप ऑफ योर बिजनेस, आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी प्रमोशन सूट करेगी। ऑब्वियसली प्रमोशन की इतनी एग्जांपल्स होंगी बिलो द लाइन के हम उन सारी एग्जांपल्स को तो अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। प्राइस रिडक्शंस मींस प्राइस रिडक्शंस में डिस्काउंट ऑफर्स भी आ सकते हैं। मनी ऑफ कूपन्स, ये बड़े कॉमनली स्टूडेंट्स को जब एट द एंड ऑफ द ईयर सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं तो उनको KFC के कूपन्स भी दिए जाते हैं। इस कूपन पे मनी आपको डिस्काउंटेड बर्गर्स और लो कॉस्ट जो इंसेंटिव्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो KFC पे जाते हैं और इन कूपन्स को यूज़ करते हैं तो इन कूपन्स पे उनको कुछ रिडक्शन प्राइस, रिड्यूस प्राइस जो है वो उसका बेनिफिट मिल सकता है। जीरो बेनिफिट, जीरो प्राइस नहीं हो सकती, लेकिन कुछ 50% ऑफ बिकॉज ऑफ द सर्टेन प्रोफेशन। अगर वो कोई डॉक्टर है तो उसको मेडिकल के जो प्रोफेशन है उसमें डिस्काउंट मिलेगा। टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई एजुकेशनल डिस्काउंट मिलेगा या कोई ट्रांसपोर्टेशन डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। मनी ऑफ कूपन समटाइम्स इस तरीके से भी होता है कि अगर एक क्लोथ बाय किया जाता है और उसके साथ एक टैग है, उस टैग को यूज करते हुए सेकेंड टाइम आप उस टैग को क्या कर सकती हैं, ज्यादातर ये लेडीज के क्लोथ पे होता है कि वो टैग को रीयूज करके आप फर्दर जाके डिस्काउंट ले लेते हैं। ये कॉमन सी एक एग्जांपल टीवी पे भी आप देखती हैं कि सर्फ एक्सेल के 3 हाली पैकेट लाने पे एक नया पैकेट आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक लिहाज से देखा जाए तो ये प्राइस रिडक्शन मनी ऑफ की फॉर्म आपको मानी जाती है। अगर आप कोक की बॉटल खोलते हैं और उसके आपको उसमें से कोई स्टिकर या कोई तो उस बिहाफ पे, इंसेंटिव के बिहाफ पे आपको एक नई कोक की बॉटल जो है वो मिल सकती है। सो मनी ऑफ कूपन ऑफर किए जाते हैं लीफलेट्स की फॉर्म में या किसी स्टिकर की फॉर्म में या किसी टैग की फॉर्म में। आप टिश्यू पेपर का टैग उतारें, उसको संभाल के रखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस टिश्यू पेपर रोज पेटल को बाय करेंगे तो आपको नेक्स्ट परचेज पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिट, इमीडिएट बेनिफिट्स एंड डिलेड बेनिफिट्स। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि प्रोडक्ट को लेने पे फौरन ही मिल जाते हैं आपको। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट खोली और उसके अंदर से आपको कोई आइटम मिल गई, एक बच्चे ने लेस का पैकेट खोला और उसके अंदर से उसको एक टॉय मिल गया, तो ये तो फौरी बेनिफिट, इमीडिएट बेनिफिट हुआ। एक है डिलेड बेनिफिट कि आज आप शॉपिंग करें और कुछ अरसे के बाद उसका बेनिफिट, डिलेड बेनिफिट। 3 सर्फ एक्सेल आपको बाय करना है, हो सकता है 3 मंथ्स में आपके तीनों पैकेट बाय और 4th मंथ में जाके आपको उसका डिलेड बेनिफिट, तो प्राइस रिडक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप कहाँ पे मिलते हैं ये लीफलेट्स की फॉर्म में, न्यूज़पेपर्स की बॉटम में आपको मिलेंगे, स्कूल से, ऑफिस से आपको किसी प्रोडक्ट की टैगिंग पे प्राइस रिडक्शन मिल सकती है। गिफ्ट्स आर अटैच्ड विद द पैकेजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आप कोई टी का पैक बाय करते हैं तो उसके साथ बिस्किट्स आपको फ्री मिलेंगे। सर अगर आप हैप्पी मील बाय करते हैं तो उसके साथ आपको टॉय मिलेगा। सर अगर आप शूज बाय करते हैं तो उसके साथ आपको शू पॉलिश या उससे रिलेटेड, दैट शुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री आइटम। अगर आपको शूज के साथ केचप मिले तो ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री आइटम नहीं नजर आएगी। तो शूज के साथ उसकी पिज्जा के साथ केचप जो है वो एज अ गिफ्ट सूट करेगी। दैट शुड बी सूटेबल, रेलेवेंट प्रोडक्ट आप अटैच कर सकते हैं
प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अंदर। इसी तरह जब शान का कोई केचप बाय की जाती है तो उसके साथ शान का मसाला जो है वो फ्री आपको मिले। ये एग्जांपल इसलिए ऐड की जाती हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टूडेंट्स की हो सके। पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट टू इनकरेज कस्टमर्स, जब कस्टमर ये देखता है, जब बच्चा एक देखता है कि उसको हैप्पी मील के साथ एक टॉय भी मिल रहा है बर्गर के साथ, तो वो जरूर इनकरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉय विद ब्रेकफास्ट सीरियल्स के साथ कुछ टॉयज जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। बच्चा उस टॉय से खेलता रहे और साथ साथ ब्रेकफास्ट को भी लेता रहे, सीरियल्स को भी खाता रहे। ना सिर्फ ये बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं बल्कि समटाइम्स ये बड़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक बड़े सोप या शैम्पू के साथ कोई छोटा सोप या शैम्पू फ्री हो तो लोग जो है वो फौरन उसको उसकी पैकेजिंग में अटैच कर लेते हैं। इसका एक ड्रॉबैक भी बताया जाता है कि समटाइम्स शॉपकीपर्स इसमें थोड़ा मिसलीडिंग करते हैं कि वो उस पैकेजिंग को डिवाइड कर देते हैं और ओरिजिनल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं और उसका गिफ्ट भी सेल करते हैं। उस गिफ्ट के ऊपर क्लियरली लिखा होता है नॉट फॉर सेल, लेकिन फिर भी समटाइम कुछ शॉपकीपर्स, इवन कुछ मेडिकल स्टोर वाले, कुछ ऐसी मेडिसिन जो सैंपल के तौर पे डॉक्टर्स पे आती हैं वो डॉक्टर्स भी सेल करते हैं समटाइम्स, और मेडिकल स्टोर्स वाले भी। तो गिफ्ट्स को गिफ्ट की फॉर्म में कंपनी भी स्ट्रिक्टली उसको रख देती है कि ये गिफ्ट है और ये नॉट फॉर सेल है। फ्री सैंपल्स, ये मार्केट रिसर्च का एक मेथड है। whenever you want to introduce a new product into the market, उसमें आपको एक तरीका तो ये है कि आप उसको लॉन्च कर दें, लेकिन इसमें रिस्क है फेलियर का। तो ये बेहतर समझा जाता है कि आप उसको लॉन्च करने से पहले उसकी सैम्पलिंग करें। एक्सपेरिमेंट्स, टेस्ट मार्केटिंग वुड बी यूज्ड। टेस्ट मार्केटिंग वेयर द फ्री सैंपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर्स जस्ट टू एनकरेज। बल्कि इसमें याद होगा आपको मार्केट रिसर्च जब हमने पढ़ा था और जब टेस्ट मार्केटिंग की बात की थी, तो जो टेस्ट मार्केटिंग का जो मेन हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो था इमीडिएट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिस्पॉन्स। नेट पे भी आपको ये वर्ड कॉमनली नजर आएगा। आप अनबॉक्सिंग देखते हैं अक्सर मोबाइल फोन्स की, तो नीचे लिखा होता है फर्स्ट रिस्पॉन्स। आपका उस मोबाइल या टैबलेट को देखने का फर्स्ट रिस्पॉन्स, आपको ये कैसा लगा, ये प्रोडक्ट आपको आप रिव्यू दें। तो जो फ्री सैंपल्स का जो मेन पर्पस है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स को और कंज्यूमर के फीडबैक को गेट करना है। आफ्टर दैट अगर फ्री सैम्पलिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाती है और 70, 60, 80% कंज्यूमर्स उसका पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, देन ये श्योरिटी समझी जाती है आपके बिजनेस में कि इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसको नेशनल इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज स्टार्टेड whenever the free sample promotion should be conducted. Free samples can be delivered to the people where इसको शॉपिंग मॉल्स में डिलीवर किया जा सकता है, इसको किसी टाउन में हाउसेज में जाके या किसी ऑफिस में पर्टिकुलर किसी स्कूल में जाके बच्चों को कोलगेट के सैंपल्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं या प्रिंस बिस्किट के सैंपल्स दिए जा सकते हैं। वॉशिंग मशीन्स के लिए आपको घर घर जाना होगा, फहद मुस्तफ़ा बनना होगा जो कि नॉक करेगा और जाके फीमेल से बोलेगा भाई कि मैं नया वॉशिंग मशीन जो है पाउडर आपके पास लेके आया हूँ और आप इसको टेस्ट करें। तो वो फ्री सैंपल्स आर गिवन आउट। या वो रिड्यूस प्राइसेस होती हैं कि जी ये प्राइसेस देखें आम मार्केट में 150 का मैं आपको 100 का दे रहा हूँ। ये इस तरीके से फ्री सैम्पलिंग तो नहीं हुई, लेकिन एक्चुअली ये सैंपल्स ही होते हैं। जैसे ही उनकी प्रोडक्ट चल जाती है वो अपनी उस प्राइसेस को इंक्रीज कर लेते हैं। तो जो लो कॉस्ट या फ्री सैंपल्स आर गिवन आउट टू द पीपल जस्ट फॉर द टेस्टेशन पर्पस, वो उसका फिर एक मूवी या एक एडवर्टाइजमेंट भी बनाई जाती है और जिसको टीवी पे डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है कि देखिए ये फहद मुस्तफ़ा था, ये फलां घर में गया, वहां जाके इसने टेस्ट करवाया और उस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बिलो द लाइन प्रमोशन भी हो गई और ये फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी हो गई। वो कपड़े घर में धुल के कभी इतने साफ नहीं हो सकते जितने टीवी एड में साफ हो जाते। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म भी है कि उसमें आउटस्टैंडिंग तौर पे चीजों को दिखाया जाता है जिसमें ताकि इनकरेजमेंट मिले। जैसे वो कहता है कि जी ब्राइट सब राइट कर देगा, तो ब्राइट क्या वाकई इतना राइट करेगा, ये तो आप जब घर में यूज करेंगे। टीवी एड में किसकी, ये एक फॉर्म ऑफ प्रमोशन है कि आउटस्टैंडिंग फॉर्म में और इनहेंस फॉर्म में चीजों को दिखाया जाता है
जो कि रियलिस्टिक समटाइम्स नहीं होती। मेंबरशिप पॉइंट्स या लॉयल्टी कार्ड्स used by the shopkeepers or the brands which are scanned electronically। आप कुछ शॉपिंग करते रहें और आपके पास एक गोल्डन या सिल्वर कार्ड होगा, उस कार्ड के बिहाफ पे आपके कुछ पॉइंट सिस्टम्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स जो हैं वो कलेक्ट होते जाएंगे। ये डिलेड इंसेंटिव होगा क्योंकि इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के कलेक्शन के कुछ हिस्से के बाद आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये भी एक एनकरेजमेंट भी है टू मेकिंग कस्टमर लॉयल टू योर बिजनेस। आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, और इससे एक तो कस्टमर आपका लॉयल भी है और फ्यूचर में सेल भी आपकी पॉसिबल है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है। इसमें ये भी डिस्कस किया जाता है इंस्टेड ऑफ बाइंग द कंपटीटर्स प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे KNN में मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं तो मुझे इसी KNN को क्या करना है, बाय करना है। After sales services and incentives given by most of the firms that usually involve in selling the electronic goods and services or even cars after sales service। ड्यूरेबल प्रोडक्ट की आज हम बात करेंगे। नॉन ड्यूरेबल, एक सर्फ एक्सेल को सेल करने वाला उसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे सकता, और नॉन ड्यूरेबल में आफ्टर सेल नहीं होती। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की जब हम बात करेंगे, ड्यूरेबिलिटी की जब हम बात करेंगे, जब भी कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट, PC बाय किया जाता है तो उसमें वारंटी ऑफर की जाती है। वारंटी मींस के इफ द प्रोडक्ट गोज रॉन्ग, अगर उसके अंदर कोई रिपेयर रिप्लेसमेंट है तो द बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस। इसमें रिपेयर यूज किया जाता है वर्ड, इसमें रिप्लेसमेंट का वर्ड जो है वो आज के ज़माने में ऐड हो चुका है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा ख़राब हो गई है द बिजनेस इज ऑफर शुड ऑफर द रिप्लेसमेंट। वारंटी पीरियड में उसके अंदर ऑफर किया जाता है। पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूनिट है वारंटी पीरियड का 10 मंथ्स। इससे ज़्यादा आपकी मर्जी है, आप 2 साल 3 साल दे दें। डॉलेंस अपने जो कंप्रेसर्स हैं उनकी 3 साल या 5 साल तक वारंटी देता है, ये डॉलेंस की मर्जी। लेकिन जो मिनिमम दैट यू हैव टू ऑफर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मेजर, कुछ लोग अगर 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं तो वो ठीक है, वो दे रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को, SOP को फॉलो नहीं कर रहे जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और वो 10 मंथ्स है। 10 माह की वारंटी आपको एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ देना होती है और कार्स के साथ आपको देना होता है। द पर्पस इज टू बाय द कंज्यूमर्स अगेन एंड अगेन एंड रिपीट परचेज। रिपीट परचेज भी बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बिजनेस में। बिजनेस में ये बड़ी कॉमनली जो है वो डिस्कस की जाती है। बिजनेस में एक टर्म बहुत ज्यादा कॉमनली डिस्कस की जाती है, रिपीट परचेज। A consumer should buy the same product again and again, that is called the repeat purchase। तो आफ्टर सेल सर्विस इसलिए जब तक आप उसको रिप्लेसमेंट का, फ्यूचर का वादा नहीं करेंगे, वो फर्म जो वारंटी ऑफर नहीं करती, कंज्यूमर्स उनके बारे में थोड़े से अनश्योर होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप वारंटी जो है वो कुछ, और वारंटी भी ऑब्वियसली आपकी उसी प्रोडक्ट पे बाय डिपेंड करेगी। जैसे मैंने बताया कि नॉन ड्यूरेबल की वारंटी को ऑफर नहीं किया जा सकता। क्या फर्नीचर की वारंटी को ऑफर किया जा सकता है? हाँ जी, वो आपसे ये वादा करता है कि जी 1 साल, इंटरवुड आपसे ये वादा करता है कि भाई अगर 1 साल तक अगर फर्नीचर को कोई मसला हुआ, इसका कलर फेड हुआ, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह की जितनी भी ड्यूरेबल गुड्स हैं इनके बारे में एक वारंटी क्लेम किया जा सकता है। स्पॉन्सरशिप्स, पहले तो ये सवाल उठाया जाता है कि जो स्पॉन्सरशिप है वो अबव द लाइन है और बिलो द लाइन है। इसको अबव के फॉर्म में पढ़ा जाएगा या बिलो की फॉर्म में पढ़ा जाएगा। अभी सेल्स प्रमोशन की मेन हेडिंग अगर देखी जाए तो ये तो बिलो द लाइन प्रमोशन की फॉर्म में, लेकिन कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि सर स्पॉन्सरशिप जो है वो अबव द लाइन। ये वाकई बात ठीक है कि ये अबव द लाइन है क्योंकि ये फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी है। लोग जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो देखते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं उस पर डिफरेंट कंपनीज ने अपनी स्पॉन्सर, और जो प्लेयर ने किट पहनी है, जो शर्ट पहनी है, उस पर भी डिफरेंट कंपनीज के जो हैं वो स्पॉन्सर उसने प्लेस किए हुए हैं।
तो स्पॉन्सरशिप एक बिलो द लाइन प्रमोशन भी है और अबव द लाइन प्रमोशन भी। अबव द लाइन में तो ये क्लियरली आपको नजर आ गया कि ये एक फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। हाउ वी डिक्लेयर द स्पॉन्सरशिप एज अ बिलो द लाइन, ये बात समझने वाली है कि इसको हम बिलो की फॉर्म में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बिलो की फॉर्म में समझना चाहते हैं तो आप ये समझें कि इट इज एक्चुअली एन ऑल्सो एक्टिंग एज एन इंसेंटिव टू द ऑडियंस एज वेल। अगर क्रिकेट मैचेस को फर्म सपोर्ट ना करें और स्पॉन्सर ना करें और उनको एड्स और एडवर्टाइजमेंट ना दें तो हमें उस क्रिकेट मैच को देखने को भी ना मिले। तो स्पॉन्सरशिप एक एडवर्टाइजमेंट है कंपनी के लिए और हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। अगर फर्म्स को स्पॉन्सर ना किया जाए तो हाउ वी वुड वॉच द टीवी और टीवी क्रिकेट मैचेस और फुटबॉल मैचेस को हम कैसे देख सकें जब तक कि हम उसको कंपनी सपोर्ट नहीं करेंगी। हमेशा आप याद रखें कि जो ट्रायल मैच होता है एक्चुअल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो वार्म अप मैच होता है, आप देखें कि कभी भी वार्म अप मैच आपको नजर नहीं आएगा टीवी पे। वजह, रीजन, कभी सोचिए इस बात की रीजन कि आपको वार्म अप मैच क्यों देखने को नहीं मिलता। आप पाकिस्तान और इंडिया का वार्म अप मैच देखना चाहते हैं लेकिन आपको ये मैच कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। उसकी वजह आज आपके सामने क्लियरली डिस्कस की गई है कि जो वार्म अप मैचेस हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। उनकी किसी भी किस्म की जो स्पॉन्सरशिप है दैट इज नॉट ऑफर्ड बाय द बिजनेसेस, तो वो वार्म अप मैच भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्पॉन्सरशिप को आज ये देखा गया कि ये अबव द लाइन भी है और बिलो द लाइन भी। और आज की लास्ट बात जो बिलो द लाइन की जो लास्ट बात है वो है पॉज, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। ये बड़ी कॉमनली आप लोगों ने देखी होगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं जो जिंदगी में रियल लाइफ में आपने इनको एंजॉय किया है। आप किसी भी शॉप पे जाएं और वहां पे आपको एक रैक नजर आएगा, जैसे सनसिल्क का रैक आपको नजर आएगा या आपको जॉनसन का या डव का रैक नजर आएगा या लेस का रैक नजर आएगा। उसमें आप ये देखेंगे कि सिर्फ अगर लेस का रैक है, एक पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले है, तो उसमें सिर्फ लेस आपको नजर आएंगे और ये कंज्यूमर के लिए इजी होगा उस रैक को तक अप्रोच करना, उसको बाय करना, उसको पिक करना, उसको तलाश फाइंड आउट करना। तो ये जो एक बेनिफिट आपने कंज्यूमर को ईज का प्रोवाइड किया है ड्यू टू पॉज, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, ये आपका अबव द लाइन भी है, ये आपको एडवर्टाइज भी कर रहा है, ये आपको शॉप में दुकान के अंदर आपको प्रोमिनेंट भी कर रहा है। आप रेड बुल का पॉज देख लें, आप KNN का पॉज देख लें, आप कोका कोला का सेपरेट फ्रीजर देख लें, ये सारे मेन्यू और डॉन का अलग फ्रीजर देख लें, ये सारे पॉज हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट को ढूंढना नहीं पड़ता एंड द शॉपकीपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को प्लेस करे जिसका पॉज है, बिकॉज पॉज एक्चुअली पेड, वो अमाउंट ऑफ मनी कंपनी ने पे किया है और वो KNN के अंदर अगर मेन्यू रखेगा तो ये गलत बात होगी। जिस मकसद के लिए पॉज को डिजाइन किया गया है उसी पर्पस के लिए पॉज को यूज भी करना चाहिए। सो बताया गया कि जो जो प्रोड्यूसर्स हैं दे वांट टू फाइंड द बेस्ट पोजीशन विद इन द शॉप। पॉज की लोकेशन भी मैटर करती है कंज्यूमर के लिए, ऑडियंस के लिए भी मैटर करती है और इसके अलावा पेमेंट के लिए भी, अमाउंट ऑफ मनी के लिए भी जो है वो मैटर करती है। अगर आप पॉज को फ्रंट पर रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर आप उसको मिड में, शॉप के मिडिल प्लेस में रखना चाहते हैं उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, और अगर आप उसको बिल्कुल बैक साइड पर रखते हैं तो लो कॉस्ट में आपको मिल सकेगा। लेकिन इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर क्या शॉप की बैक साइड पे जाते हैं या उसकी जो फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर है उस पर जाते हैं, तो पॉज के लिए आपको पे करना है और जितना उसकी लोकेशन प्रोमिनेंट होगी उतनी ज्यादा आपको उसकी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करना होगा। सो प्रोड्यूसर्स आर ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पोजीशन फॉर देयर प्रोडक्ट्स इन द शॉप। रिटेल शॉप्स की बात की है, रिटेल शॉप में डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, मर्चेंट स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, जिसे आप कहते हैं सुपर स्टोर्स, जैसे हाइपर स्टार टाइप के जो फर्म्स हैं इनको सुपर स्टोर कहते हैं। ज्यादातर आपको इनमें पॉज नजर आएंगी। वजह यह है कि ये इतने बड़े स्टोर्स हैं कि इस पे आपको प्रोडक्ट को ढूंढना कंज्यूमर ऑडियंस के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर कंपनी पॉज ऑफर करती है तो ये आपके लिए बड़ा एक इजीली
उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूर से ही वो पॉज नजर आ जाता है, उसका एक ब्रांड नेम उस पॉज के ऊपर प्रोमिनेंट शो किया होता है, एक प्रेफर्ड लोकेशन पे वो पड़ा होता है। या फिर ये है कि डिपार्टमेंटल और सुपर स्टोर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ग्रोसरी स्टोर से बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि ये डिवाइडेड होते हैं और सेल्फ सर्विस होते हैं। डिवाइडेड मींस कि इनमें फूड आइटम्स को अलग किया गया है, इनमें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सोप और शैम्पू को अलग किया गया है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर जरा लिमिटेड होता है, उसमें फूड और क्लोथिंग और क्लीनिंग तक प्रोडक्ट होती है, या वेजिटेबल्स आप ऐड कर ले। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सुपर स्टोर तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको मिल जाता है, इवन मोटर बाइक्स, एसी, स्प्लिट यूनिट्स तक भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन सुपर स्टोर का सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि इसको डिवाइड किया जाता है और हर सेगमेंटेशन, आपने पढ़ी सेगमेंटेशन, तो ये सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट पे इसको डिजाइन किया जाता है। डिफरेंट सेगमेंट्स शॉप में आपने बनाए हुए हैं, कंज्यूमर उस सेगमेंट में जाता है, वहां पे उसको पॉज मिलता है और उस पॉज के थ्रू वो इजीली बाय कर सकता है। सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो नीड ऑफ अ सेल्स पर्सन, वो कंज्यूमर अपनी मदद खुद करेगा। सेल्फ सर्विस में वो एक ट्रॉली होगी उसके पास, उसमें वो उन प्रोडक्ट्स को पुट करेगा, टिल पे जाएगा, बिल बनवाएगा, उस ट्रॉली को वो पार्किंग तक अपनी कार तक लेके जा सकता है। देन दिस वे ऑफ शॉपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन द करंट सिचुएशन, मोर मोस्टली लाइक बाय द कंज्यूमर्स। वो जो पुरानी पर्सनलाइज सर्विसेज जो कि एक टाउन में स्मॉल शॉप जो आपको पर्सनल सर्विस देता है और खुद से आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, इससे बेहतर आज के ज़माने में कंज्यूमर्स, बेहतर तो कंज्यूमर की नज़र में वो ये है कि कंज्यूमर जो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ किसी डिपार्टमेंटल या सुपर स्टोर पर जाता है और सेल्फ सर्विस को पसंद करता है और एक लिस्ट ले जाता है और पॉज के थ्रू, और पॉज उसकी हेल्प करता है। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले आज आपने सीखा है। आई कैचिंग का वर्ड इसमें यूज किया है, ऐसा पॉज बनाया जाता है जो दैट शुड बी आई कैचिंग, कलरफुल हो। अगर उसमें लेडीज की प्रोडक्ट है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कलरफुल हो, उस उनके कलर्स हो। अगर वो बॉयज की प्रोडक्ट्स हैं और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन हो, उसमें कोई मेल सेलिब्रिटी की पिक्चर भी हो जो कि बड़ी कोई कॉमन सा हो और उसको वो अट्रैक्टिव हो और लोग उसकी तरफ बढ़ें। और द एडवांटेज ऑफ सच प्रेफर्ड पोजीशन रिजर्व बाय द शॉपकीपर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ब्रांड लीडर, शॉपकीपर इसको रिजर्व तो करता है ब्रांड लीडर के लिए, लेकिन रीजन भी तो बताई जाए ना कि रीजन क्या है, वाई शॉपकीपर ज्यादा इसको प्रेफर करता है ब्रांड लीडर को। ये कोई रीजन नहीं है, बेसिकली वो ब्रांड लीडर ज्यादा पे करता है, वो पैसे भरता है शॉपकीपर को, उस लोकेशन को बाय करता है अपने पॉज के लिए, इसलिए रिटेलर्स या जो शॉपकीपर है वो भी ब्रांड को वो पॉज देने में सक्सेसफुल। तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं सारा। आज हमने स्टार्ट किया बिलो द लाइन प्रमोशन से। जी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इस स्लाइड से जिसमें आपने देखा कि शॉर्ट टर्म incentives are provided to the consumers, price reduction, money off coupons, आप प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं 50%, या छोटे कूपन्स ऑफर कर देते हैं जो कि न्यूज़पेपर या लीफलेट की फॉर्म में, उनको कंज्यूमर यूज करके प्राइस की रिडक्शन से बेनिफिट ले सकता है। उसके बाद गिफ्ट्स हैं जो कि पैकेजिंग में छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं अटैच किए जाते हैं। पिज्जा के साथ अगर आपको केचप मिल जाए तो वो एक एज अ गिफ्ट आपको मिलेगी जिसको आपको बाय नहीं करना पड़ेगा। गिफ्ट्स को कभी बाय नहीं किया जाता। फ्री सैंपल्स आर हैंडेड ओवर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसेस टू द कंज्यूमर जस्ट फॉर टू टेस्ट। उसको आप चेक करें, उसको खाएं, उसको पहने, उसको यूज करें, कार की टेस्ट ड्राइव लें और फिर उसका इमीडिएट फीडबैक नोट करवाएं। मेंबरशिप ऑफर्स की जाती हैं, मेंबरशिप पॉइंट्स ऑफर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बेस पे इनको मैनेज किया जाता है और डिलेड की फॉर्म में कुछ अरसे के बाद जब आप शॉपिंग करेंगे तो कुछ शॉपिंग आपको फ्री होगी। आफ्टर सेल सर्विस जो है वो इसमें ऑफर की जाती है, जिसमें आप देखते हैं कि ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को 1 साल तक कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसके रिपेयर की, उसके रिप्लेसमेंट की, उसको ठीक करने की। एंड द स्पॉन्सरशिप जो कि क्रिकेट मैचेस को, स्पोर्ट्स इवेंट्स को, ड्रामास को, मूवीज को स्पॉन्सर करने का मकसद ये है कि द कंपनी नेम शुड बिकम एसोसिएटेड विद दैट इवेंट। एडवर्टाइजमेंट भी और बिलो द लाइन भी। और पॉज आपकी वो बेस्ट पोजीशन है जो कि आप शॉप में हायर करते हैं कंज्यूमर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए और ईज प्रोवाइड करने के लिए, आसानी प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर
So you can ask the question if you have any type of question, anything that you want to discuss in the question answer session. Allah Hafiz.